Good morning, students. Myself, Robin Nehila, PGT Corpus from Shanti Niketan World School. आज हम आपको बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना बताएंगे और इसी के साथ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी नाउ बैलेंस शीट इज हियर and our balance sheet division by two part, and our first credit part is liability and second debit part is asset. And now these are assets. Suppose that cash, bank, building, machinery, debtor, advertisement, suspense, profit and loss, and biz receivable yani ke PR. And liability side is here capital for A and B, creditors, WCR full form is Workmen Compensation Reserve, IFF and IFR means is Investment Fluctuation Fund and Investment Fluctuation Reserve, and last one is Journal Reserve. And liability total is 240 and asset total is 240. Total balance sheet is here and only two adjustment is. First one is depreciation on building at the rate of 10%. After that, on machinery at the rate of 5%, and bad debt on debtor 1000. And this is the process of questions process. Normally हमें देखना क्या होता है कि इस एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को फर्स्टली आप जो एनालिसिस करते हैं और उस चीज को देखते हैं जो नॉर्मली डिविजुअल इन कैपिटल अकाउंट. तो आप देखते हैं एसेट साइड में तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो ये जो एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसको आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसको मूव करते हैं. अब आते हैं लायबिलिटी साइड में. लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी मूव करते हैं और WC, IFF एंड जनरल एंड ऑल थ्री फिगर इन लायबिलिटी. These are moved in credit side of capital account. Firstly, advertisement. So advertisement divisible by A and B in old ratio, and now A and B ratio is not given. So according to deed, according to absence of deed, if A and B is not have a ratio, so according to absence of deed, A and B ratio is equal ratio. So that advertisement suspense amount is 5000 in divided by A and B in equal ratio. So 2500 in A and 2500 in B. Same is PL. And now to profit and loss account divisible by equal in A and B 7500 and 7500. And now Workmen Compensation Reserve, IFF and General Reserve, and now three figure divisible by old ratio in A and B. And now firstly WCR amount is 20,000. WCR amount is थोड़ी यहाँ मिस्टेक हुई हमसे. WCR की अमाउंट को यहाँ पर 10,000 रिप्रेजेंट करेंगे आप. तो WCR amount is 10,000 divisible by equal ratio in A and B, 5,000 in A and 5,000 in B. And IFR, investment fluctuation fund, same as here, 5,000 in A and 5,000 in B. And journal reserve divisible by equal ratio in A and B, GR, short form is GR. So 5,000 and 5,000. नॉर्मली क्या होता है जब आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं जो नॉर्मली पार्टनर्स में डिविजिबल होती हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नॉर्मली एंट्री की जाती हैं. तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट पे अमाउंट कितनी है. एंड ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी स्टार्ट बाय ओल्ड कैपिटल बाय A and B. So firstly you write now two balance BD. And now A's capital is 1 lakh and B's capital is 1 lakh. So enter in 1 lakh in A
and 1 lakh in B. नॉर्मली होता क्या है कि जब आपका कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में आप डिविजल पॉइंट देखते हैं कि डिविजल पॉइंट ए और बी में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल था, सो मैंने इस क्रेडिट पार्ट वाले को डेबिट पार्ट वाले को मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड में डिवाइड किया और WCR IFF जनरल रिजर्व को मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिया। अब बात करते हैं आप एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है यानी कि एसेट और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूड और रीअसेसमेंट है वो नॉर्मली टोटल इफेक्ट होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। सो डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी in entering debit side of revaluation account and increase in asset and decrease in liability entered in credit side of revaluation account. Firstly, adjustment is here so that debt on machine at the rate of 5% and on the building amount is debt on building at the rate of 10% and building amount is 1 lakh. So 1 lakh into 10 by 100 equals 10,000. So that debt on machinery to debt on building 10,000. Next is debt on machinery 5% and machinery amount is 80. So 5% is 4,000. Debt on machinery 4,000. And second adjustment is bad debt on debtor 1,000. So asset in reduce. So debtor 1,000. After that अब आप इसके बाद आंसर कैरी करेंगे 10,000, 14 and 15, 15,000. So loss on revaluation account divisible by A and B in equal ratio. 7,500 in A and 7,500 in B. So total loss is 15,000. नॉर्मली अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो इसके प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इस साइड में आता है और लॉस इस साइड में आता है। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैपिटल अकाउंट में क्रॉस मूव करते हैं। सपोज दैट लॉस इज हियर, सो एंटर इन दिस साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500 in A and 7,500 in B. Suppose that profit is here, so transfer in credit side of partners capital. ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसके आंसर की बात आती है तो आंसर आप जो निकालते हैं वो ए टोटल का ए से आप माइनस करते हैं, बी टोटल का बी से माइनस करते हैं। तो ए टोटल इज हियर एंड माइनस इज दिस, सो आंसर इज टू बैलेंस सी डी। सेम बी कॉलम, बी टोटल इज हियर एंड माइनस इज दिस, सो आंसर इज दिस। तो नॉर्मली आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही आप बना लेते हैं। ये तो हो गया लेजर का बनाना। अब इसके बाद आती है कि इनकी जर्नल कैसे बनती है। नॉर्मली चैप्टर 3 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद लेजर बनाना सीखेंगे। जब तक आपको लेजर बनाना नहीं आएगा तब तक आप जर्नल नहीं सीखेंगे, जब तक आपको जर्नल बनाना नहीं आएगा तब तक आप लेजर नहीं सीखेंगे। तो आप जर्नल और लेजर के कोऑर्डिनेशन को समझिए किस टेक्निक से आप जर्नल बनाते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड से बताया, जब लेजर से आप जर्नल बनाते हैं तो राइट टू लेफ्ट टेक्निक को यूज करते हैं। सपोज दैट लॉस इज, तो फर्स्ट एंट्री इज A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, सेकंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, फोर्थ एंट्री ये रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाती है। अब आते हैं आप कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में आपके पास A एंड B टू पार्टनर्स। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। अराउंड 3 एंट्रीज इज देयर। एंड डेबिट साइड एंट्री
A capital account debit, B capital account debit to advertisement suspense account, A capital account debit, B capital account debit to profit and loss account, A capital account debit, B capital account debit to revaluation account। 3 एंट्री आपकी यहाँ पर। आई होप ये मैंने जो आपको लेजर बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने आपको बताया, आप इसको सीखे होंगे। उसके बाद मैंने आपको जर्नल बताई, जर्नल नॉर्मली आपने सीखे होंगे। तो इस रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट के बनाने से और फिर इसके बाद जर्नल बनाने से दोनों ही चीज़ें का कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाता है। तो इस वीडियो को देखते हुए और समझते हुए आप इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल के आप बनाएंगे। यदि अभी भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव करें। थैंक यू।